Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, today we are going to study about a very interesting topic of grammar, that is comparison of adjectives. Right? Comparison of adjectives. Before starting this, let me ask you that what is the basic definition of adjectives? Do you know what are adjectives? Yes, you have been studying this topic adjectives from your early classes, but still let me define it. Let me give you a quick knowledge about it, a quick bite about it, that what is an adjective. See students, we all know that it enhances or it tells us about the quality of a noun or pronoun, right? So basically what are adjectives? These are the words that modify or describes a noun or pronoun, right? ये क्या करते हैं, noun या फिर pronoun को modify करते हैं या describe करते हैं. They are usually placed before I would say they are positioned before the noun or pronoun. Okay, I'll write simple example over here. She is a beautiful girl. He is an honest boy. Okay, he is an honest boy. Now here when I say what is an adjective, so adjective is this, beautiful. Here honest is an adjective. Why? Because girl is what? It's a noun, boy is a noun. Okay, and it is modifying, it is describing how the girl is. She is beautiful. वो कैसी है? Beautiful है. He is a boy. Yes, but how the boy is? What is the quality? How it is describing? And he is an honest boy. So honesty has been described and it has been used as an adjective. Okay, तो क्या कर रहे हैं? वो quality बताता है, modify करता है, describe करता है किसी भी noun या फिर pronoun को. तो अब मुझे बताइए, चलिए adjective तो हमें समझ में आ गया, लेकिन comparison of adjective ये क्या है? What's all about this? We have studied about types of adjectives, right? Quality, quantity and all, है ना, ये हमने पढ़ा है. But comparison of adjectives, have we ever done? Yes, of course. This is the same topic as comparison of degree of comparison, और जिसे हम आप last अपने previous 7th standard में 6th standard में आप पढ़ चुके हैं. Degree of comparison, it is nothing but the same. Both are equal. Okay, it's just the difference of naming. Okay, तो क्या है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, बाकी ये क्या है, टॉपिक सेम है. अब देखिए, जब कभी भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, है ना, तो हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इजी है, राइट? ये बहुत ही इजी है. अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म जो है अगर फॉर्म करना है ना, कंपैरेटिव डिग्री अगर फॉर्म करना है तो हम क्या लगाएंगे, ER लगा देंगे या मोर देन लगा देंगे. अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो हम EST लगा देंगे या मोस्ट लगा देंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर. यस, ऑफ कोर्स, आई एग्री. इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स दिस टाइप ऑफ टेक्निक वर्क्स. बट कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम तब होती है जब आपको सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना है या प्लूरल फॉर्म, ये समझ में नहीं आता, है ना. सिंस यू हैव एंटर्ड 8th स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी गेटिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिग्रीज, राइट? आपको EST लगा दिया, ER लगा दिया, ऐसे फॉर्म नहीं आएंगे, है ना. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच इज़ द सिंगुलर फॉर्म, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म. सो चलिए उसको पूरा आज इस टॉपिक में क्लियर करते हैं, जितने भी आपके डाउट हैं कि आप डिग्रीज कैसे फॉर्म करेंगे. ओके, कैसे आपको उन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है. हर एक डिग्री के लिए मैं 3 से 4 आपको फॉर्मूलाज दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो. तो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. ओके, और उसको नोटेड डाउन करिए, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, ये मेरी क्या कहना चाहिए, मेरी तरफ से आपको ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा. So let's start our today's topic, that is comparison of adjectives. Here we all know that degree of comparison consists of 3 basic types: the positive one, comparative and
सुपरलेटिव, राइट। तो हमें पता है कि 3 फॉर्म होते हैं, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Okay, so 3 degrees, but let me ask you, जी जब हम लिखते हैं डिग्री, है ना, जब हम ये डिग्री लिखते हैं, what does it imply, what does it mean, do you know what does a degree stands for? Okay, so let me tell you, देखिए, जब अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है ना, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करती हूँ कि इट इज़ गुड, है ना। मैं क्या यूज़ करती हूँ, दिस वन इज़ गुड, राइट। सो जब मुझे कोई एक ही चीज़ के बारे में उसकी कोई अच्छाई बतानी है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, ये वर्ड गुड। बट अगर मुझे कोई 2 चीज़ें कंपेयर करनी हो, है ना, किसी 2 चीज़ों में कंपेयर करना हो कि हाँ दिस वन इज़ गुड बट दैट वन इज़ बेटर, सो गुड बिकम्स बेटर व्हेन वी कंपेयर, राइट। गुड बिकम्स बेटर व्हेन वी कंपेयर 2 things, okay. Now I know that when I was having only one option, it was good. When I got 2 options, it was like the second one was better. But what about the third one? अगर मुझे किसी एक सेट ऑफ थिंग्स का दिया हुआ है और मैं मुझे उन सभी में से कंपेयर करके मुझे कोई एक चीज़ को बहुत अच्छी बतानी है, तो मैं कहूँगी इन सब में से among all this one is the best. So here among all means सब के बीच में से, सब चीज़ों में से, सारे सेट ऑफ थिंग्स में से जो सबसे अच्छी है वो क्या है, बेस्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस्ट। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग थिंग्स, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, दूसरी को तीसरी चीज़ से, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तीसरी चीज़ से, या हर चीज़ से जब हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप क्यों पढ़ते हैं, है ना। जब आपको कोई सेट ऑफ थिंग्स दिया होता है, या आपके पास कोई चीज़ें होती हैं, या आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं और आपको कंपेयर करना हो, अगर वो इकलौती कोई चीज़ है तो आप क्या कहेंगे उसके लिए कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव फॉर्म आ जाता है, बिकम्स बेटर, एंड व्हेन इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर, इट्स नॉट अबाउट द सुपीरियर और इन्फीरियर, मीन्स जो सबसे बेहतरीन हो उसके लिए हम बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री यूज़ करते हैं, ओके। सो ये सारा कंपैरिजन जब हम करते हैं, एक चीज़ का, 2 चीज़ का, या सभी चीज़ों का एक साथ कंपैरिजन करते हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ओके। सो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरी तरफ से कि आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आए कि जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसे हम इस तरीके का नाम देते हैं, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ हियर आई हैव रिटन 3 एग्जांपल्स। मोहन्स मैंगो इज स्वीट, हरीज मैंगो इज स्वीटर दैन, है ना, यहाँ पर क्या है, हरीज मैंगो इज स्वीटर दैन मोहन्स, Shyam's mango is the sweetest. Now in all the 3 examples you might have compared that yes this is what, this is the noun, okay, ये क्या है, ये noun है, okay। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये compare हो रहा है ना, ये compare हो रहा है, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, ये adjective है, सॉरी, okay। अब ये जब कंपेयर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड पार्ट टू द थर्ड वन। कैसे कंपेयर हो रहा है, जब मेरे पास सिर्फ मोहन का मैंगो मुझे दिख रहा था तो मैंने क्या कहा कि मोहन के पास जो मैंगो है ना, वो बहुत स्वीट है, मोहन्स मैंगो इज स्वीट व्हेन देयर वाज नो कंपैरिजन, बट व्हेन हरी केम विथ हिज मैंगो आई थॉट दैट आफ्टर टेस्टिंग इट वाज मोर स्वीटर दैन मोहन्स, किंतु जो मैंने हरी का जो मैंगो खरीदा और टेस्ट किया वो कैसा था, ज़्यादा स्वीटर था, ठीक है। और जब मैंने शाम का मैंगो टेस्ट किया
किया तो वो इन दोनों के कंपैरिजन में सभी मैंगोज में से सबसे स्वीटेस्ट था। ओके, सो दिस इज हाउ यू फॉर्म अ पॉजिटिव डिग्री, अ कंपैरेटिव डिग्री एंड अ सुपरलेटिव डिग्री। जब आप किसी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस आप उनको उसकी अच्छाई बतानी है ना, आप सिर्फ एक अच्छी चीज़ उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, व्हिच वन इज बेटर, okay, then you add just simply er and then the particular word is not able to be changed, then we add more to it. Okay, so मैं उसको भी बताऊंगी आपको कि कैसे चेंज होता है वो। and when you are comparing all of them and you need to find the best among these all, okay, so then you form the superlative degree. so ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं, ओके, जिस पर से आप समझ सकते हैं कि आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे फॉर्म करते हैं। पर ये यहीं तक ख़त्म नहीं होता है ना। अब यहाँ मैं आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनको अलग अलग तरीके से कैसे फॉर्म होता है, इनकी फॉर्मूलाज लेकर कैसे आप कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो आई विल रब इट ऑफ एंड वी विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव। ओके, then we will go to another topic, that is the comparative one. Okay, if you want to note it down, these examples you may note it. Now positive degree. So as I told you that when we compare only one thing, okay, there is means no comparison between any of the person or things that we are talking about. When we are just noticing, we are just modifying that word, okay, we are just telling that quality of that particular word or noun or pronoun, then we use the positive degree। यानी हम जब व्यक्ति विशेष या किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, है ना, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट ओवर हियर लाइक Avengers Endgame is a good movie. Honestly speaking, Avengers Endgame मेरी भी उतनी ही फेवरेट मूवी है, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेती हूँ जिससे मुझे याद रहे, है ना, जिसको मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकूँ। आप भी ये तरीका अपनाएं कि आपको जो चीज़ें पसंद हो, है ना, उसको आप कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलर सेंटेंस में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको, है ना, तरीका को ढूंढिए, तो आपको बहुत ईजी जाएगा एंड योर इंग्लिश विल बी मोर इम्प्रूव्ड। ओके, सो हियर आई हैव रिटन एवेंजर्स एंडगेम इज अ गुड मूवी। अरिजीत sings very beautifully. So here in this positive degree, what I am saying that Avengers Endgame is a good movie. Okay, so good is what, it's a noun over here, right? Here I am telling it's this movie is good. I am not comparing anything. I am not telling कि ये ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब सिंपल तरीका है हमें बताने का, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म करने का कि हाँ, ये जो मूवी है ये बहुत अच्छी मूवी है। अरिजीत सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, वेरी इज हियर अ नाउन। ओके, इट इज टेलिंग हाउ ब्यूटीफुली he sings अरिजीत वेरी ब्यूटीफुली। ओके, तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि अरिजीत बहुत ही खूबसूरती से गाना गाते हैं या बहुत अच्छे सिंगर हैं या बहुत अच्छा गाना वो गाते हैं। अब ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से हो गया जहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री जो है वो फॉर्म करनी है। व्हाट अबाउट व्हेन यू आर हैविंग जब आपको दो चीज़ें दी गई हों और दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वली अच्छे हो, ना कम ना ज़्यादा, तब आप क्या करेंगे? तब आपको पॉजिटिव डिग्री में कोई सेंटेंस फ्रेम करना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद करना है, लर्न करना है, समझना है, बिल्कुल अच्छे से लिख के रखिए कि कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए, आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है तो आपको पता है कि सब एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस पढ़े हैं ना आपने, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आपको क्या फॉर्म करना है, इस कि एक ऐसा वर्ड लगाना है पॉजिटिव डिग्री के साथ कि वो आपको आप कंपैरिजन ना बताए
बताया बल्कि दोनों को इक्वल बताया। सो दिस इज एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, ओके, प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस एज, ओके, और यू कुड से प्लस एज एंड प्लस नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म करना है कि आप कोई भी चीज़ बताएं, कंपेयर ना हो बल्कि दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी कहीं पर भी आपको ये सेंटेंस में क्या करना है, किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं बताना, सिर्फ दोनों इक्वल है ये बताना है। अब यानी कि ये मैंने लिखा ज़रूर है लेकिन आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से नहीं समझेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। एवेंजर्स इन्फिनिटी is as good as Avengers Endgame. Since I am very much obsessed with Avengers, तो मैं मोस्टली ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें मुझे करने में मज़ा आए, है ना। तो आप भी जब ये पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा कि हाँ चलिए मुझे इन्फिनिटी ज़्यादा पसंद नहीं या एंड गेम, नहीं, दोनों बहुत अच्छी थी। अब कंपेयर करने की बात नहीं है, हम क्या बता रहे हैं, एवेंजर्स इन्फिनिटी भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि एंड गेम, है ना। भले ही दोनों एक दूसरे का पार्ट है लेकिन कैसे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा अच्छी थी, नहीं वो ज़्यादा अच्छी थी। तो दोनों को हम इक्वल बता रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। तब आपको ये फॉर्मूला जो है वो बहुत काम आता है पॉजिटिव डिग्री में, जो कि आप अपनी हाल क्लासेस में भी पढ़ेंगे। दैट यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी इज एज गुड एज एवेंजर्स एंड गेम, ये उतनी ही अच्छी है जितनी कि ये वाला पार्ट था। तो यहाँ पर एवेंजर्स इन्फिनिटी ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, इज क्या है, ये वर्ब है, एज आपने पॉजिटिव डिग्री के साथ लगाया है, गुड आपका क्या है, नाउन है, फिर आपने एज लगाया है और फिर इसके बाद ये और नाउन प्रोनाउन। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल्स में आप क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री है, हम बोलते हैं ना ये भी उतना ही अच्छा है जितना ये, है ना, दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी का मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, है ना। क्या बता सकते हैं आप इसके लिए, दिलजीत sings as beautifully as अरिजीत। ओके, तो दिलजीत जो है वो भी उतना ही अच्छा गाता है जितना कि अरिजीत गाता है। तो यहाँ दिलजीत इज व्हाट, दिस इज योर नाउन और दिस इज योर सब्जेक्ट, आई वुड से दिस इज योर वर्ब, as beautifully is your positive degree, okay, as again noun and pronoun, right? So इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ आप बिना कंपेयर किए, है ना, बिना कंपेयर किए आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में दोनों कैसी चीज़ें हैं, बिल्कुल इक्वल है ना, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, जितना ये अच्छा है उतना ही ये अच्छा है। ओके, है ना। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। एक और आपको जो है फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत है या लिखने की या समझने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट पार्ट था या इसे सेकंड दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल नाउन का यूज़ करना है। ओके, आप इसको नोट करते जाइए, ये फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नो अदर का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ नो अदर के साथ भी आपको कई बार जो है पॉजिटिव डिग्री फॉर्म करनी होती है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए जहाँ पर आपको नो अदर के साथ पॉजिटिव डिग्री फॉर्म करनी है। नो अदर प्लस सिंगुलर आपका क्या होगा, नाउन होगा, प्लस सिंगुलर वर्ब होगा, ओके, प्लस
अब यहाँ पर आपने क्या लगाया था एज, यहाँ पर एज भी लग सकता है या सो भी लग सकता है, प्लस आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, प्लस एज प्लस नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, किसके साथ, नो अदर के साथ, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए लिख लेती हूँ, नो अदर सिंगर सिंग्स एज ब्यूटिफुली एज अरिजीत। अब आप यहाँ अरिजीत के अलावा कोई भी ले सकते हैं, मुझे अरिजीत स्पेशली बहुत पसंद है तो मैं अपने पसंद के एग्जाम्पल्स लेती हूँ, है ना। तो आपको अगर कोई पसंद है तो आप वो सिंगर ऐड कर सकते हैं, वो एक्टर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे एग्जाम्पल्स पर ले, पर समझिए ज़रूर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए नो अदर के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है, नो अदर सिंगर सिंग्स एज ब्यूटिफुली एज अरिजीत, अरिजीत के जैसा कोई और नहीं गाता, है ना। तो यहाँ ये पॉजिटिव डिग्री है, उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे लेकिन बता रहे हैं कि किसी के जैसा नहीं है वो, अरिजीत कैसा अपने आप में एक अलग सिंगर है ना, थोड़ा सा वो यूनिक है, तो हम उसको सबसे बेस्ट नहीं बता रहे हैं लेकिन अलग बता रहे हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री को फॉर्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर हम बताते हैं। आप इसमें एक और लिख सकते हैं, जैसे नो अदर गर्ल इज एज स्वीट एज शी, ओके। तो वो लड़की जो है उसकी जैसी लड़की तो कोई स्वीट जो है मतलब बहुत अच्छी जो है वो हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। तो यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि लड़की बहुत स्वीट है, जितनी भी लड़कियों से आप मिलोगे ना उनसे वो बहुत अच्छी है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कर रहे हैं, नो अदर का यूज़ कर कर हम उस चीज़ को, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं, ओके। सो नो अदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप उसको नोट डाउन करिए। फिर हम एक और देख लेते हैं जिसको हम वेरी फ्यू बोलते हैं, वेरी फ्यू के साथ भी हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से शायद आपको विजिबल ना हो, मैं रब कर लेती हूँ कोड। सो वेरी फ्यू का यूज़ देख लेते हैं हम फॉर पॉजिटिव डिग्री, ओके। नाउ वेरी फ्यू प्लस, अब यहाँ वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड फ्यू जो है इट इज़ इटसेल्फ प्लूरल टाइप ऑफ वर्ड, है ना। आपने अगर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा, डिटरमाइनर्स में भी पढ़ा होगा कि हम आर्टिकल्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स में आते हैं। अगर आपने ये अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, या ये बहुत ज़्यादा है, या उसकी जिसकी फिक्स क्वांटिटी नहीं बता पाते हैं तो हम फ्यू वर्ड ऐड करते हैं, फ्यू, मैनी, मोर, मच, ये वर्ड्स ऐड करते हैं। तो उनमें से फ्यू जो ये वर्ड है ये अपने आप में कैसा है, ये एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड है। तो इसके साथ हम हमेशा लगाते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा। प्लस अब इसके साथ क्या आना चाहिए बताइए, क्या इसके साथ एज आएगा या सो आएगा? ऑब्वियसली अगर हम नो पॉजिटिव डिग्री में हैं तो हमेशा एज या फिर सो का यूज़ करेंगे, प्लस फिर आपका नाउन या प्रोनाउन, ओके। तो ये फॉर्मूला अपने पास लिख के रखिए, अगर ये आपको विजिबल नहीं है मैं इस तरीके से कर देती हूँ, है ना। तो ये देखिए वेरी फ्यू प्लस आपका प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, पॉजिटिव डिग्री एज या फिर सो, प्लस नाउन और प्रोनाउन। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग्स सो गुड, वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग, ओके। वेरी फ्यू सिंगर सिंग्स व्हाट, किसके से कंपेयर कर रहे हैं? अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर सिंग्स नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। ये अभी हमें क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंग। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, सो गुड एज,
very few singers sing so good as, क्या आना चाहिए यहाँ पर, नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर मुझे जो पसंद है, जैसे अरिजीत, तो मैंने यहाँ लिख दिया अरिजीत। ओके, सो ये वेरी फ्यू के साथ आपका पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव सॉरी ये प्लूरल नाउन, ये प्लूरल वर्ब, सो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, एज, ओके, एंड नाउन और प्रोनाउन। इस तरीके से आपने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में ही आपने वेरी फ्यू, नो अदर, और जब आप सो एज का या एज एस का यूज़ कर आप बता सकते हैं। तो ये है आप आज का सिर्फ इतना ही, का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री है उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप ये सभी जितने भी आपके मैंने फॉर्मूलाज अभी लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर हायर क्लासेस, तो आप उनको नोट डाउन करिए, आगे फ्यूचर में आपको डेफिनेटली ये काम आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक वेल, ओके। आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक with the another lecture, okay. Take care students and do study.